Welcome back. We are discussing the topic of science of class 8, that is microorganisms, friends and foe. Up to this time, we have discussed that what are the microorganisms, how they are useful for us. Now we are talking about which microorganisms and how they are harmful for us. In that topic, we have talked about the disease-causing microorganisms. Now we'll talk about the carriers of disease-causing microorganisms. So students, first let's know what is meant by this carrier. Carrier means what? Someone who carry. Suppose I am carrying a load, then I'll become the carrier. Suppose a truck of goods is there, then that become the carrier. So carrier मतलब ऐसी चीज, ऐसा चाहे वो living organism हो या non living हो, which carries something from one place to another place, that is called as the carrier. So उसका हमारे इस टॉपिक से क्या लेना देना है? बहुत ही क्लोज रिलेशन है. What? Carriers in our atmosphere are playing very important role to carry the microorganism, mainly disease causing microorganism, from the place where they are to the place where they are not present. In short, contaminated atmosphere से या unhealthy atmosphere से, unhealthy person से, atmosphere से healthy atmosphere, healthy person तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये कैरियर्स करते हैं. सो ऐसे कौन कौन से कैरियर्स है? मोस्टली जो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में स्प्रेडिंग ऑफ द डिसीज करते हैं एज बीइंग अ कैरियर, दैट आर फर्स्ट इज योर हाउस फ्लाई एंड सेकेंड इज द मॉस्किटो. ओके, first we'll talk about this housefly. Just forget about the mosquito. Right now about mosquito we'll talk later. Housefly, देखो ऐसी कौन सी भी जगह नहीं है जहाँ पे आपने housefly नहीं देखा होगा. मतलब बाहर, at your home it must not be there. Wherever you are residing, wherever you are doing your work, it must not be there. उसका presence मतलब डिसीज का प्रेजेंस. नाउ हाउस फ्लाइज जो है, दीज आर जनरली हैबिचुअल टू लीव टू सर्वाइव ऑन द प्लेसेस विच आर कॉन्टामिनेटेड, द प्लेसेस विच आर अनक्लीन, डर्टी, अनहेल्दी, पोल्यूटेड, जहाँ पे डंप, गार्बेज वगैरह सिवेज होता है, फिल्थ एरिया जिसे हम कहते हैं, ये सारी जगह पे हाउस फ्लाइज प्रेजेंट होती है. और ये जो हाउस फ्लाइज है, उनका अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, बॉडी स्ट्रक्चर एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना. वो कभी बैठेंगे ऐसे शांत बैठे तो देखना मैग्नीफाइंग ग्लास से. उसके जो लेग्स होते हैं ना, एंड उसकी जो बॉडी होती है, दैट इज कवर्ड विद द स्मॉल टाइनी हेयर्स. बहुत सारे छोटे हेयर्स होते हैं. अब होता क्या है, व्हेन these flies are sitting on such places which I told you just before few seconds, say garbage का एग्जाम्पल लेते हैं या फिर कचरा लेते हैं जहाँ पे बैठे हैं. Now all these things, unhealthy, contaminated, polluted, dirty, spoiled thing जो है, वहां पे decomposers होते हैं in the form of bacteria and viruses also. वो होते हैं. अभी क्या होता है, जब flies used to sit on them and they are flying to other place, और आप देखना उनकी एक आदत होती है, गंदी प्लेस से वो अच्छी प्लेस पे जाते हैं, फिर से गंदी प्लेस पे, फिर से अच्छी प्लेस पे. अच्छी प्लेस मीन्स मे बी अनकवर्ड फूड, राइट, मे बी आवर बॉडी, मे बी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो हमने डाइनिंग टेबल पे वगैरह रखे हुए हैं. सो when these flies are sitting on these spoiled things, filth area, गंदगी पे बैठते हैं, तो वहां के बहुत सारे जो माइक्रोब्स है से बैक्टीरिया, वो उनकी बॉडी को अटैच हो जाते हैं
ड्यू टू द हेयर्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। जब वो ऐसी बॉडी के साथ किसी अनकवर्ड फूड पे बैठते हैं या फिर हमारे खाने पे बैठते हैं या फिर हमारे बॉडी पे बैठते हैं तो क्या होता है, the microbes which have been carried from that place are released or transferred to our food, to our body, to the things which are exposed to the air. Clear? अभी उसके बाद जब हम वो खाना खाते हैं या फिर जाने अनजाने में वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है, सो उससे क्या होता है, germs, microbes enter in our body. As they enter in our body, they starts to cause the disease. Disease can be any type of disease. ठीक है, हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस होता है, टाइफाइड होता है, कॉलरा होता है, ये सारे डिसीज मोस्टली हाउस फ्लाइज कैरियर की वजह से होते हैं. So what precautions we have to take? First of all, make the home, make the atmosphere surrounding of our home clean. एटमॉस्फेयर की मैं बात स्मॉल स्केल पे कर रही हूँ. हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर है, घर के अंदर घर के बाहर आपका गार्डन है, सब कुछ है, तो मेक इट क्लीन. क्लीन रखो इसको, गार्बेज जमा मत होने दो. आपने झाड़ू भी लगाया है तो डोंट गेट इट असेंबल एट वन प्लेस. एक ही जगह पे जगह वो कचरे को जमा मत करो. Either you can burn it or dispose it by the way you want. Clear? Then do not leave any food which is not covered. ऐसा छोड़ो ही मत, मतलब बिना ढके कुछ भी मत रखो. मोस्टली खाने की चीजें, फ्रूट्स वगैरह हम उसको ढक के नहीं रख सकते, बट वायर मेश वगैरह रख सकते हैं. बिफोर वी ईट, वॉश देम प्रॉपरली. वॉश देम प्रॉपरली. क्लियर? इसके अलावा भी हम जो इंसेक्टिसाइड्स आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी सीजन में, जनरली देखो समर में जब आम का सीजन होता है तो जो हाउस फ्लाइज है वो भी ज्यादा दिखने को मिलती है. या फिर इफ वी आर क्लोज टू एनी एनिमल हस्बेंड्री प्लांट, काउ शेड वगैरह है, तो हाउस फ्लाइज ज्यादा होती है. तो उस केस में हम हाउस फ्लाइज का जो रिपेलेंट आता है या तो वो यूज कर सकते हैं या फिर कोई इंसेक्टिसाइड है वो यूज करते हैं और कर सकते हैं, या फिर उनको अवॉइड करने के लिए, उनसे गेट रीड करने के लिए जो भी रेमेडी अवेलेबल है वो यूज करते हैं. एट द एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट वी हैव टू कीप आवर एनवायरमेंट विदाउट फ्लाइज. सबसे पहली बात कि क्लीनलीनेस, हाइजीन ये मेंटेन करो तो फ्लाइज आएगी ही नहीं. इज दैट क्लियर? हाउ डज दीज हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ कैरियर? यू नो कैरियर कैसे होते हैं? वो कैरी तो करते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, बट उनका उनकी खुद की बॉडी पे कोई असर नहीं होता है. वो ढेरों बैक्टीरिया कैरी करे, दे आर रिमेन हेल्थी विदाउट गेटिंग इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियाज. दैट्स व्हाई they are called as the carrier. ऐसा होता तो कैरी नहीं करते. सोचने वाली बात है ना. So we must have to take proper precaution that everything around us must be clean. Clear? In next session we will talk about the next major carrier, that is mosquito. Thank you.